Hello students, hope you all are well. Let us start our next video on the basis of elements of accounts standard 11 part 1. Students, already you know the which chapter is going on. I told you the fourth chapter, which is called a journal entries. Most important chapters. And in this chapter, the video what I told you, that was almost all from the illustration, few are from exercise. And today this video what I am going to teach you, the most important video or most important illustration, though it is from illustrations, but there are so many things are there which you have to learn from these illustrations. And I am sure if you are understanding these illustrations remaining, you will not have any problems. After doing the page number 82, page number 82 illustration 12, page 82 illustration 12, I want to teach you in very details, because I have seen that one. There are so many transactions that there are almost one day transactions in the month of August. 31 days are there, and all the days you are having the one transaction, and there are so many transactions are there you have to understand so many things. So one second, I want to tell you, you pay attention very carefully to make you understand. So I am trying in our level best. Page number 82, illustration number 12. From the following transactions, write the journal entries in the books of Sri Rajbir. राजवीर का बुक्स में मैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए जा रहा है. 2014 अगस्त 1. ए बिजनेस इज कमेंस विद द इंट्रोडक्शन कैश ऑफ रुपीज 50,000, रिसीवेबल ऑफ रुपीज 25,000, liability of rupees 10,000, stock of goods of rupees 15,000. I told that one. First entry, all the assets will be debit and all the liability will be credit, and the difference amount will come for capital. A business is commenced with the introduction cash of rupees 50,000, means cash account debit 50,000, receivable of rupees 25,000, receivables account debit means debtors account debit of rupees 25,000, liability of rupees 10,000. Here they have given creditors. You can write liability also, two liability. Now question is coming, the liability account credit, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. तो आपको क्या करना है, जो डेबिट है डेबिट में लिख दो, जो क्रेडिट है क्रेडिट में लिखना दो. कैश डेबिट, कैश यू राइट डेबिट, डेटर्स डेबिट, डेटर्स यू राइट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट, that you write debit. Then credit is liability, that is creditors they wrote, and the difference which is coming, that is called capital. So like that way you have to find out cash account debit 50,000, debtors account debit 25,000, stock of goods account debit 15,000, two creditors 10,000, or two liability 10,000, or two capital 80,000. Narrations I am not telling. Main thing I am telling, narrations you will try to understand from your book. Number 2, a loan, 10% loan of rupees 30,000 is borrowed from Srimati. Here only you are taking loan, you are not paying the interest. So interest don't calculate, only loan you have taken, that you pass the journal entries. And the cash account debit to loan, that is called cash account debit to loan account of rupees 30,000. इंटरेस्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है. ए लैपटॉप परचेस फ्रॉम जयवीर for cash of rupees 20,000, paid the others expense of rupees 500. I told if you are buying the assets, then the amount will be added. So laptop of rupees 20,000 and paid other expense of rupees 500. That means laptop cost is 20,500. Your journal is laptop account debit to cash. See, the laptop account debit to cash of rupees 20,500. Assets purchase किया, उसको साथ वो ऐड हो गया. समझ में आ गया. The next is coming number 4. Open a bank account with Dena Bank by depositing cash of rupees 15,000. Every one of you know. Open a bank account with the Dena Bank by depositing cash of rupees 15,000. That is called bank account debit to cash. Cash is going and bank is the receiver. So bank account debit to cash. That is obviously it will be there. Bank account debit to cash. Yes, correct. Number 5. 5 onwards you pay attention. Goods of rupees 30,000 purchased from Royal Traders on credit at 10% trade discount. Royal Traders stores
Royal Stores, not traders. Royal Stores paid railway freight, not freight, railway freight of rupees 200 and wages of rupees 1000 on our behalf. On our behalf मतलब it should be paid, हमको पेड करना था लेकिन उसने पेड कर दिया तो उसको हमको पैसा देना पड़ेगा बाद में. तो 30,000 गुड्स परचेस किया, 10% डिस्काउंट मीन्स गुड्स का वैल्यू हो गया 27,000. परचेस अकाउंट डेबिट हाउ मच विल कम 27,000. एंड द पैसा पेमेंट का बारे में अभी कुछ नहीं बोला. रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फ्रेट 200 एंड वेजेस. दिस इज आवर एक्सपेंस, सो आवर एक्सपेंस विल कम द रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 200, जो वेजेस अकाउंट डेबिट हाउ मच 1000, द परचेस अकाउंट डेबिट हाउ मच 27,000 एंड टू रॉयल स्टोर्स 30,000. यू अंडरस्टैंड. 30,000 का 10% 3,000, तो गुड्स का भाव हो गया 27,000. और ये दोनों भी हमारा एक्सपेंस है लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया रॉयल स्टोर्स, तो हमारा एक्सपेंस है इसलिए हमारा अकाउंट में डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैश का रॉयल स्टोर्स को, उसको पेमेंट करना पड़ेगा. परचेज अकाउंट डेबिट 27,000, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000, ओजिस अकाउंट डेबिट 1,000 एंड टू रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 30,000. तो याद रखना है फिफ्थ ट्रांजेक्शन रॉयल स्टोर्स को हमको 30,000 पेमेंट देना पड़ेगा बाद में. वी हैव टू पे 30,000. क्यों? गुड्स का भाव 27,000 और 2,000 या 3,000 उसने पेमेंट कर दिया, सो वी हैव टू पे हिम आफ्टर वर्ड्स. आवर एक्सपेंस इट इज देयर. फिफ्थ इज ओवर. नाउ सिक्स्थ, गुड्स परचेस फ्रॉम रॉयल स्टोर्स ट्रेडर्स. यहाँ ट्रेडर्स कर दिया, वहाँ स्टोर्स कर दिया, मतलब ये की है. गुड्स परचेस फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स out of which goods of rupees 15,000 sold to Bhagavati at 10% trade discount after adding 20% profit on it, paid railway freight 1,000 and wages 500 on their behalf. Very good questions. You try to understand what is going on. It is here. Goods purchased from Royal Traders, out of which goods of rupees 15,000 sold to Bhagavati 10% trade discount after adding 20% profit. कितना गुड्स परचेस किया था? गुड्स परचेस किया था 27,000. उसके अंदर 15,000 का गुड्स, उसका अंदर 15,000 गुड्स यू सोल्ड, बट 15,000 इज द CP कॉस्ट प्राइस. व्हाट हैपन आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट? 20% ऑफ 15,000 इट कम्स 3,000. दैट इज 20% प्रॉफिट फर्स्ट ऐड करना है. तो यू सोल्ड इट इज एट 18,000, बट अगेन यू डिडक्टेड 1,800 फॉर TD 10% डिस्काउंट. तो 10% डिस्काउंट डिडक्ट करके आपने इसको बेचा था 16,200 में. दैट यू अंडरस्टैंड. दिस द कैलकुलेशंस. 15,000 का गुड्स, 3,000 प्रॉफिट ऐड किया. फर्स्ट डोंट डिडक्टेड डिस्काउंट, फर्स्ट यू ऐड प्रॉफिट. प्रॉफिट ऐड किया, दैट इज 18,000. देन यू डिडक्ट 10%. इसका ऊपर 10%, इसका ऊपर 10% होगा तो 1,500 हो जाएगा. दैट विल बी रॉन्ग. सो 18,000 का 10% इज इक्वल टू 1,800 एंड नाउ यू सोल्ड 16,200. The cost of goods which was 15,000 that you sold at rupees 16,200. After that what happened? Now paid railway freight 1,000 and wages of rupees 500 on their behalf. We paid the railway freight of rupees 1,000 and so railway freight and wages is our not expense, their expense. So 16,200 पेमेंट किया, सॉरी गुड्स का भाव था, और 1,000 होता है वेजेस और 500 होता है 1,000 रेलवे फेट एंड 500 वेजेस. दैट मीन्स दिस इज 700, दिस इज 17,700 which you have to debit to the Royal Traders. Let us see how much is coming. 17,700 भगवती ट्रेडर्स को. तो और एक बार देख लो, रॉयल ट्रेडर्स के पास जो गुड्स परचेस किया उसका जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास कर दिया प्रीवियस. उसका अंदर जो 15,000 गुड्स को 3,000 प्रॉफिट ऐड करके 20% प्रॉफिट ऐड करके 1,800 10% रेट डिस्काउंट डिडक्ट करके 16,200 में हम भगवती को बेचा था. लेकिन उसका अंदर भी 1,000 रुपया और 500 रुपया हम भगवती के लिए ऑन बिहाफ ऑफ हिम वी पेड. सो भगवती अकाउंट डेबिट 17,700, गुड्स का भाव 16,200 और कैश वी पेड 1,000 प्लस 500 1,500. So Bhagavati Traders account debit 2 sales 2 cash, that is 6. Now 7, goods of rupees 15,000 purchased from Kruti at 10% trade discount and 10% cash discount. Half amount is paid by check. This is another thing.
Goods purchase of rupees how much? 50,000. This is 6. Now come to the 7. 7 में देखो 50,000 गुड्स परचेस किया, उसको 10% TD मीन्स 5,000, दैट कम्स 45,000. यस करेक्ट, 45,000 10% एंड 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट इज पेड बाय चेक. ओके, तो इसका आधा कर लो 22,500. 22,500 और दिस इज पेड नॉट पेड. NP मीन्स नॉट पेड, दिस इज पेड. Again you will get 2250 डिस्काउंट, 5% 10%. तो ये अमाउंट आ जाएगा कि जो 5 10 तक 1 3 8 2 5 और दिस इज दैट मीन्स यू हैव परचेज द गुड्स. सो दिस इज पेड, दिस इज डिस्काउंट एंड दिस इज द अमाउंट विच यू मेड द ट्रांजेक्शंस इज हेयर. तो एक्चुअली आपका जर्नल आएगा परचेस अकाउंट डेबिट 45,000, टू कुर्ती 22,500, टू बैंक की चेक हुआ न कैश, टू कैश 20,250 एंड टू डिस्काउंट 2250. लेट अस सी परचेस अकाउंट डेबिट 45,000, टोटल परचेस 45,000, टू कुर्ती दिस इज है परचेस अकाउंट डेबिट 45,000, टू कुर्ती 22,500, टू बैंक 20,250 एंड टू डिस्काउंट 2250. दिस इज 50,000 ट्रेड डिस्काउंट, 45,000 इज द कॉस्ट, हाफ इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, हाफ इज कैश ट्रांजेक्शन. कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ओनली दैट अमाउंट विच इज पेड और received several time. I told you 7 is over. Now 8, sold goods sold to Bhagavati, return back the goods of rupees 550 which we have returned back to the रॉयल स्टोर्स. देखो भगवती को जब हम गुड्स बेचा था जस्ट नाउ, कहाँ बेचा था भगवती को? ए वाला बेचा था, इज नॉट इट? कौन सा ट्रांजेक्शन में? 6 में. देखो 6 में भगवती को गुड्स बेचा था. कैसे गुड्स को बेचा था? पे अटेंशन वेरी केयरफुली, कैलकुलेशन अमाउंट शुड बी, देयर विल बी मिस्टेक्स. हम भगवती को 15,000 CP को गुड्स बेचा था. CP वाज 15,000 और वो गुड्स हम कितना में बेचा था? एट लास्ट 16,200 में बेचा था. 1,500 वाज अनदर एक्सपेंस. ओके, तो जो गुड्स का CP था 15,000, वो गुड्स हम उसको 16,200 में बेचा था. नाउ ही इज गिविंग बैक 540 गुड्स. कौन? भगवती ट्रेडर्स. भगवती ट्रेडर्स इज गिविंग बैक 540. तो भगवती ट्रेडर्स एज गिविंग, भगवती को हम लोग क्या किया था? भगवती को हम लोग सोल किया था. यस, दिस इज 6 ट्रांजेक्शन सोल किया था. तो यू आर गोइंग टू गेट बैक. तो भगवती सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती ट्रेडर्स. 8 नंबर जर्नल में ये आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती ट्रेडर्स 540. अभी ये जो गुड्स भगवती को हम लोग बेचा था, वो गुड्स हम कहाँ से परचेस किया था? रॉयल ट्रेडर्स के पास परचेस किया था. तो हमको भी रॉयल ट्रेडर्स को वापस कर देना है. सो दिस इज सेल्स रिटर्न एंड दिस इज परचेस रिटर्न विच वी हैव रिटर्न टू रॉयल ट्रेडर्स और रॉयल स्टोर्स एक ही है. लेकिन रॉयल ट्रेडर्स को जब मैंने ट्रांजेक्शन पास करूँ तब 540 अमाउंट नहीं आएगा. क्यों? उसको CP को ऊपर डिपेंड करना है. तो कैसे कैलकुलेशन करना है? सपोज कर लेना है दैट 540 जब गुड्स था उसको CP कितना होगा ये सोच लेना है. बराबर. तो दिस इज सेलिंग प्राइस. सपोज इफ दैट गुड्स कॉस्ट इज 100 CP, सपोज करो, सपोज CP इज 100. तो फर्स्ट वी एडेड 20% प्रॉफिट, दिस इज P, तो 120 हो गया. बाद में वही क्या किया? डिडक्ट किया 10% ट्रेड डिस्काउंट TD, तो 108 हो गया. तो मतलब 100 रुपये का गुड्स हम 108 में बेचा था. दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज दिस? 540 गुड्स को CP कितना है हमको फाइंड करना है. सपोज दैट वी आर गोइंग टू सेल टू भगवती ट्रेडर्स 100 गुड्स, 100 रुपीज़ गुड्स, 100 रुपीज़ गुड्स का CP. तो कैसे कंडीशन में बेचा था?
100 रुपये के ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड किया था, 120 हो गया, और उसके पास 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया तो 108. दैट मीन्स आई कैन टेल यू व्हेन 108 रुपीज इज द एसपी, दैट टाइम सीपी इज 100. इट इज करेक्ट. तो व्हेन 540 इज द एसपी, दैट टाइम 100 डिवाइडेड बाई 8, 108 मल्टीप्लाई बाई 540, which will get 500. तो 500 गुड्स को आपने 540 में बेचा था. चेक करो, देखो 500 गुड्स, उसको 20% ऐड करो तो 500 का 20% 100, 600 हो गया, और उसको 10% डिडक्ट करो 40 रुपीज़ तो 540 हो गया. तो वी हैव टू गिव बैक गुड्स टू रॉयल ट्रेडर्स, नॉट 540 बट 500. रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, that is 500. Clear to you? This amount you will do mistakes. How to calculate? You understand? Once again shall I tell you? This is 100 रुपये का गुड्स 20% प्रॉफिट ऐड करके 120 हुआ, और 12 और 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके 108. तो 100 रुपये का गुड्स को कैलकुलेशन करके 108 में बेचा, तो 108 इज द एस पी व्हेन सी पी इज 100. तो 540 इज द एस पी व्हेन सी पी इज 500. So your journal is Royal Stores account debit to purchase return, that is 500. 8 is over. 9. Goods of rupees 15,000 after adding 20% profit sold to Nirali at 10% trade discount and 10% cash discount, half amount received in cash. Now goods of rupees 15,000 after adding 20% profit. तो फर्स्ट विल ऐड द प्रॉफिट. तो 15,000 का 20% होता है 3,000, तो 18,000 गुड्स का कॉस्ट हो गया. नाउ सोल्ड टू निराली एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. 18,000 के ऊपर 10% मतलब 1,800, तो गुड्स का कॉस्ट कितना हो गया 16,200. एंड 10% कैश डिस्काउंट. अभी 10% कैश डिस्काउंट वी हैव टू कैलकुलेट. तो वंस अगेन यू सी इट हियर, 15,000 का गुड्स, ये कौन सा ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन नंबर 9. ट्रांजेक्शन नंबर 9. गुड्स का कॉस्ट होता है 15,000 और 20% पी मतलब प्रॉफिट विच इज कमिंग 3,000, 18,000. नाउ 1,800 10% टी डी, तो हो गया 16,200. 16,200 का हो गया. बाद में क्या हुआ, हाफ अमाउंट इज रिसिव्ड इन कैश, तो हाफ इज नॉट रिसिव्ड, तो 8,100 हाफ होता है और 8,100 रिमेनिंग हाफ होता है. अगेन 810 रुपया डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट 10%. 810 मतलब 1 9 10 1 9 2 7,290. तो आपका जनरल हो गया एक अमाउंट, एक अमाउंट, एक अमाउंट और एक अमाउंट. 9th में देखो, रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट कहाँ गया, रॉयल निराली अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स. निराली अकाउंट डेबिट 8,100, कैश अकाउंट डेबिट 7,290, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दिस इज सेल्स ट्रांजेक्शन्स. फॉर दैट द कैश एंड डिस्काउंट दोनों डेबिट हो गया. निराली अकाउंट डेबिट 8,100, कैश अकाउंट डेबिट 7,290, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 810, to sales 16,200. That is 9 is over. Now 10. Goods of rupees 20,000 after adding 30% profit sold to Bhomik at 10% trade discount and 10% cash discount if the amount is paid in 10 days. 10 नंबर ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट कैलकुलेशन नहीं करना है. 10 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, 10 तारीख से 10 दिन का अंदर पेमेंट होगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा. तो गुड्स ऑफ रुपीज़ 20,000 आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट सोल्ड टू भौमिक, तो 20,000 का 30% प्रॉफिट होता है 6,000, तो 26,000 हो गया. सोल्ड टू भौमिक का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 2,600, 26,000 का 10% 2,600 माइनस होगा, तो 23,400. 23,400 का ट्रांजेक्शन होगा 10 नंबर एंट्री में. देखो भौमिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 23,400. आई थिंक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज it is given it here 20,000 के ऊपर 30% प्रॉफिट which is 6,000, तो 26,000 minus 10% means 2,600, so it comes
23,400 Bhowmik account debit to sales. Now 11, paid 1,500 for advertisement bill to Gujarat Samachar. That is very easy. That advertisement account debit to cash 1,500. Advertisement account debit to cash 1,500. Next is coming the 12, received a personal dividend of rupees 800 which is deposited to our bank account of the business bank. Personal dividend, it should go to the personal bank account, but it has gone to the business bank account. Meaning is the owner has given amount to the business. So personal dividend of rupees 800 which is deposited into the bank account debit to capital, entry will come. Bank account debit to capital. Because personal dividend should come to the business bank account, but it has gone by mistake to the, personal dividend, it should go to the personal bank account, but by mistake it has gone to the business bank account. So business got the money from owner. So bank account debit to capital, only rupees 800 is the 12th. Now 13, Nirali return goods of rupees 650 from sales of 9th. 9th में देखो यहाँ से निराली को गुड्स बेचा था. यस, कितना में बेचा था? 15 जगह गुड्स को 20% ऐड करके 10% डिडक्ट करके बेचा था. तो अभी आप सोचो, जो सपोज 100 रुपये का गुड्स होगा तो 20% प्रॉफिट ऐड होगा तो 120 हुआ, और 10% डिस्काउंट, अगेन 10% डिस्काउंट, तो 108. तो 108 जब सेलिंग प्राइस तब 100 रुपीज़ इज़ द CP. तो 1 सेकेंड यू गो, 108 का अंदर 100 होता है और 650 का अंदर कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 108 मल्टीप्लाई बाई 650. हाउ मच विल कम? आई थिंक 600 विल कम, वॉट एवर इट इज़. 13 देख लेता है. 650 सेल्स रिटर्न है ना. अच्छा सॉरी, ये सेल्स रिटर्न है. Nirali returned goods, no, sorry, this is 13th is the 650 against the transactions of 9th. 9th में बेचा था तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू निराली, वो तो आएगा डायरेक्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू. लेकिन ये गुड्स जो निराली को हम लोग बेचा था वो आई हैव नॉट गिवन बैक टू फ्रॉम whom we have purchased. I thought that we are going to give this back, not like that. So Nirali return goods 650. So we have to write it here, sales return account debit to Nirali. That is correct only. 13. Now 14, goods of rupees 400 received as free sample which is distributed to the customer as in free sample for advertisement. 14 is goods you got free and you have given is free also. So no monetary transactions is not happen. Due to that it is not a transaction, it is a non-economic transaction. Goods of rupees 400 received as free sample which is distributed to the customer in for advertisement. This is 14 non-economic transactions. Correct? 14 is the non-economic transactions. Now 15, a check of half amount is received from Bhowmik and cash discount allowed. See, Bhowmik के पास आपने 15 तारीख को एक चेक रिसीव किया, उसका के 10 तारीख को आपने Bhowmik को गुड्स बेचा था. दैट टाइम कंडीशन था 10 दिन के अंदर वो पेमेंट देगा तो उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा. तो 10 तारीख से 10 दिन मतलब 20 दिन, मतलब 20 तारीख. लेकिन 15 तारीख को ये चेक ऑफ हाफ अमाउंट इज रिसिव्ड फ्रॉम Bhowmik एंड सो Bhowmik को आपने कितना गुड्स बेचा था? 10 नंबर एंट्री में 23,400 आपने गुड्स बेचा था. तो उसका आधा कितना है? 11,700. 11,700 money, now half money you are going to get from Bhowmik, and 11,700 जो हाफ होता है वो 11,700 उसका भी आपने 10% डिस्काउंट मिलेगा 1170. तो 1170 मतलब 3,7 1 2 5 और दिस इज 10,530 रुपया आपको मिला और आपने 1170 डिस्काउंट दिया. देखो 10,530 रुपये मिला और डिस्काउंट दिया. तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू Bhowmik. बैंक अकाउंट डेबिट 10,530, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1170 टू Bhowmik. Bhowmik के पास आधा मिल गया, आधा Bhowmik का बाकी है, वो याद रखना है. नेक्स्ट, द गुड्स रिटर्न बाय निराली
ऑन 13 सेंड टू कुर्ती। ये देखो अभी आया, कहाँ जो मैंने पहले कैलकुलेशन किया था शुरू 13 नंबर में, 13 में जो मैंने गुड्स 650 रिसीव किया था, गुड्स रिटर्न बाय निराली, दैट ऑन 13 दैट वी आर गिविंग बैक टू कुर्ती। वो गुड्स तुमने आप लोग कुर्ती के पास परचेस किया था होगा। ओके, ये देखो कुर्ती के पास परचेस किया था बराबर, टेट डिस्काउंट 10% एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो 650 का गुड्स था, अभी 650 का गुड्स का भाव 605 रुपया कैसे हो गया? 16 नंबर एंट्री का एक्सप्लेनेशन यहाँ देखो, सेम थिंग विच आई टोल्ड जस्ट नाउ। यहाँ से ये वाला 108 तब 100, 650 होगा तो 602 रुपया अप्रॉक्सीमेट होता है। सो दिस इज परचेस, दिस इज सेल्स रिटर्न एंड दिस इज परचेस रिटर्न। इसका साथ प्रॉफिट था, इसका साथ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो कुर्ती का अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, दैट इज 16 नंबर ट्रांजेक्शन्स। नाउ 17 transactions it is said the a machines purchased for rupees 7,000 and paid 500 cash for installations of the machine. Every one of you know machine account debit, a machine purchase of rupees 7,000 and paid 500, machine account debit to cash. This is कितना 7,500। देखो machine account debit to cash, machine का 500 रुपया it is already added, machine account debit to cash 7,500। नेक्स्ट इज कमिंग द गुड्स ऑफ रुपीज 300 रिसिप्ट एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के लिए गुड्स रिसीव किया, दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, इट इज़ नॉट ए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिकॉज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स इज नॉट हैपेन। नाउ द 19 आफ्टर डिडक्टिंग 100 डिस्काउंट चेक इशूड टू रॉयल ट्रेडर्स एज फाइनल सेटलमेंट। यहाँ से ध्यान देना है 19 से, वेरी इंपॉर्टेंस। 19 में देखो रॉयल ट्रेडर्स को हमको आफ्टर डिडक्टिंग 100 डिस्काउंट चेक इशूड टू रॉयल ट्रेडर्स, रॉयल ट्रेडर्स को हम लोग चेक दे दिया रिमेनिंग अमाउंट का, फाइनल सेटलमेंट हो गया। अभी रॉयल ट्रेडर्स के पास, रॉयल ट्रेडर्स को हमको देना कितना था वो पहले ध्यान देखो। 5 नंबर ट्रांजेक्शन में, 5 नंबर ट्रांजेक्शन में रॉयल ट्रेडर्स को मेरे को देना था 30,000, करेक्ट 30,000। उसके अंदर रॉयल ट्रेडर्स को गुड्स वापस कर दिया 500, वो 8 नंबर ट्रांजेक्शन में। 8 नंबर ट्रांजेक्शन में वी हैव गिवन बैक गुड्स ऑफ रुपीज 500 टू रॉयल ट्रेडर्स, और उसको देना था 30,000। तो अभी नाउ हाउ मच आई विल गिव 29,500, बट आउट ऑफ दिस 29,500 100 रुपीज विल डिडक्ट, रिमेनिंग अमाउंट विल गिव, सो वी विल गिव हिम 29,400। सी the royal traders account debit to bank to discount, because I have to give him 30,000. Out of that 500 goods we have given back, so I have to give him 29,500. Now as I am giving check immediately, for that again I am going to get 100 rupees discount. So royal stores account debit to bank to discount, that is 29,400 and 100. This is 19. Now 20 is giving nearly deducted the allowance 50 and settle the account. अभी निराली को बाकी कितना था? निराली कौन सा एंट्री में था? निराली था भौमिक, निराली यहाँ है 9th नंबर में। 9th नंबर में निराली था 8,100। देखो 9th नंबर में निराली का 8,100 रुपया पेमेंट देना है, 8,100। ना 50 रुपया उसको देना नहीं है, बाकी पैसा उसको दे देना है, इज नॉट इट। बट कौन सा ट्रांजेक्शन मैंने बोला 8,100, तो निराली को गुड्स वापस किया होगा कोई जगह पे, आई थिंक सो यू हैव गिवन, यस यू गॉट इट, यस। द 13 नंबर ट्रांजेक्शन में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू निराली 650 है, तो कितना हुआ 8,100 माइनस 650, तो कितना हुआ 5 5 10 1 7 8 4 12 1 7,450 माइनस 50, सो 7,400।
देखो तो कितना आता है, कौन सा गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यस करेक्ट, गॉट इट। निराली को यहाँ से ध्यान दो, 9th ट्रांजैक्शन में 8100 निराली को बाकी था। ओके, 13 ट्रांजैक्शन में 650 का गुड्स निराली को मैंने वापस दे दिया, तो 8100 माइनस 650 विच कम्स 7450। नाउ 7450 उसको ट्रांजैक्शन सेटल करना है, लेकिन आई एम गोइंग टू गेट 50 रुपीज़ डिस्काउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू निराली, कैश अकाउंट डेबिट 7400, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू निराली 7450। दिस इज 20th transactions. Now 21. On account Bhaumik paid cash 5000 and issued the check for the remaining balance and has settled the account. भौमिक का साथ कितना पेमेंट देना था, यहाँ है 23,400, 10 नंबर ट्रांजेक्शन में 23,400 भौमिक को देना था। उसके अंदर 15 नंबर ट्रांजेक्शन में भौमिक 11,700 ऑलरेडी दे दिया, बराबर। तो बाकी कितना है 11,700। अब 11,700 जो भौमिक को बाकी है, उसका अंदर भौमिक अभी देखो 5,000 का कैश दिया और 6,700 का चेक दिया 21 में। कैश अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 6,700 टू भौमिक 11,700। You have to calculate because all the amounts will not be given it here. This is which transactions? 21 में देखो यहाँ बोला ऑन अकाउंट, इट इज़ गिवन ऑन अकाउंट भौमिक पेड कैश 5,000 एंड इशूड अ चेक फॉर द रिमेनिंग बैलेंस एंड सेटल द अकाउंट। तो बैलेंस हाउ मच इट इज़ नॉट गिवन, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, बिकॉज भौमिक इसका आगे भौमिक का साथ ट्रांजेक्शन कहाँ है, कितना बाकी है, कितना दिया, वो सब कैलकुलेशन करना है। 10 नंबर ट्रांजेक्शन में 23,400 का एंट्री हुआ था भौमिक का साथ, एंड 15 ट्रांजेक्शन में भौमिक 11,700 पेमेंट दे दिया, तो 11,700 बाकी था। उसके अंदर भौमिक 5,000 कैश दे रहा है और चेक दे रहा है 6,700, और टोटल 11,700 पेमेंट हो गया 21 में। 22 गुड्स ऑफ ₹4,000 destroyed by fire. The insurance company admitted a claim of ₹3,000 and ₹200 released from the sale of destroyed goods. Very good. 5 से 4,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, इंश्योरेंस कंपनी 3,000 क्लेम दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3,000, और लॉस हुआ एक्चुअली 1,000 नहीं है, लॉस हुआ कितना 800, बिकॉज 4,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, 3,000 आपको मिल गया, 1,000 का अंदर 200 रुपया जो जल गया गुड्स वो भी आपने बेच दिया। तो आपका 22 नंबर ट्रांजेक्शन्स इट विल कम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 3,000, कैश अकाउंट डेबिट 200, लॉस ड्यू टू एक्चुअल लॉस इज 800, नॉट 3,000 एंड माइनस 4,000 इक्वल टू 1,000। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,000, कैश अकाउंट डेबिट दैट इज 200 and loss due to fire account debit 800 to purchase is 4,000। 22 number। 23 to earn 20% profit on selling price the cost goods of ₹500 sold। 5,000 का गुड्स को 20% प्रॉफिट ऐड करके आपने बेचा था, लेकिन यहाँ ध्यान दो 5,000 का गुड्स का ऊपर 20% प्रॉफिट इफ यू ऐड it comes 1,000, so 600 if you write it will be wrong, because if you do like that it is this you calculated on CP का ऊपर कैलकुलेशन किया, लेकिन आपका क्वेश्चन CP का ऊपर नहीं था। 20% प्रॉफिट ऑन SP which you do not know, SP you do not know, so सपोज करना है, सपोज your SP is 100, so प्रॉफिट इज कितना, प्रॉफिट विल बी 20, SP minus profit is equal to CP. This way you have to calculate. तो आपको कैसे हुआ, आपको जब CP है 80 तब SP है 100, आपका जब CP है 5,000 तब आपको SP होगा 100 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 5,000, करेक्ट। दिस इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 6,250 आई थिंक सो। एक बार देख लेते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन्स है। 23
23 में देखो, यस 6250 करेक्ट. 80 CP, SP is 100. If CP is 5000, then SP will be 6250. ये कैलकुलेशन करना है. 1 सेकेंड, यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग मिस्टेक. CP का ऊपर 20% कैलकुलेशन करो तो 6000 आएगा, लेकिन CP का ऊपर नहीं बोला SP का ऊपर. तो अभी सपोज मैंने SP 100 सपोज किया, तो उसके ऊपर 20% प्रॉफिट मतलब 20% ऑफ 100 इज 20, तो CP will be 80. So what is coming? If CP is 80, then SP will be 100. CP is 80, SP will be 100. If CP is 5000, the SP will be 6250. अभी 6250 is your SP. अभी उसका 20% माइनस करो तो 1250 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये 5000 आ जाता है. कल चेक करने के लिए 23 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6250. देखा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6250. नाउ 24 इज गिविंग इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती. श्रीमती का लोन आप 2 तारीख को लिया था. 30,000 का ऊपर 10%. अमाउंट नहीं दे दिया, अमाउंट इज नॉट गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट. 10% ऑफ 30,000 इज कमिंग 3,000 फॉर द होल द ईयर, बट यू आर गोइंग टू पे फॉर 1 मंथ. तो 3000 डिवाइडेड बाई 12, which comes 250. Is not it? So 250 you are going to pay which date? 24. Interest on loan account debit to cash 250. How we are calculating, you understand? 10% of 30,000, 3,000 divided by 12 is equal to 1 month. Next is coming गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेलवे एक्सीडेंट. रेलवे एक्सीडेंट में गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ तो इजी है. लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस. फॉर दैट अगेंस्ट दैट यू डिड नॉट गेट बैक एनी. सो लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस इज इक्वल टू 2500. 50 shares of Adani Power Limited purchased at the market price of rupees 300 per share and including rupees 2 brokerage, the amount paid by check. Already you know. 300 मल्टीप्लाई बाई 50, 1500. एक शेयर का भाव 50 ना, एक शेयर का भाव 300, 50 शेयर परचेस किया था. 300 इंटू 50 इज इक्वल टू 1500. 1500 का ऊपर 2% ब्रोकरेज. 2% ऑफ 1500 इज कमिंग 30 रुपीज़. सो यू आर गोइंग टू पे 300 रुपीज़. सॉरी, 2% ऑफ 30,000 ना, कितना हुआ? 30,000 क्यों हुआ? यस 30,000 हुआ ना. 300 इंटू 50 इज इक्वल टू 15,000 हुआ ना. ओके, हाँ करेक्ट. 300 इंटू 50, तो ये काम है. और 3 5 15 का 15,000. 15,000 का 2% मतलब 300. यस करेक्ट. तो दिस इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अदानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक. 300 ऐड हो गया, दैट इज ब्रोकरेज. I told if you buy the assets, the brokerage amount will be added. That is added. Now 27. A computer of business 2,500 sold to Corona for rupees 1,000. देखो कंप्यूटर बेचा, सोल्ड किया, लॉस हुआ. हाउ मच यू आर गेटिंग? कैश. हाउ मच लॉस यू आर गेटिंग? 1,500. कैश ऑफ रुपीज 1,000, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट. लॉस ड्यू टू सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट to computer. This is the journal. You are don't write here to sales because this is not a goods. So you have to write cash account debit, loss due to sale of computer account debit to computer. 27 में देखो कोरोना अकाउंट डेबिट. अच्छा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन था. कोरोना अकाउंट डेबिट 1,000, लॉस ड्यू टू सेल ऑफ द कंप्यूटर 1,500 टू कंप्यूटर. मैंने कैश बोला था, मैं सोचा कैश ट्रांजेक्शन, बट इट वॉज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स. यस, सोल्ड टू कोरोना. यस, तो कोरोना को आपने 1,000 में बेचा 2,500 का कंप्यूटर. तो कोरोना अकाउंट डेबिट, नॉट कैश अकाउंट डेबिट. कैश ट्रांजेक्शन होता तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर. एज इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो कोरोना अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर. दैट इज योर जर्नल फॉर 27. नाउ 28. Electricity bill of rupees 1,800 and telephone bill of rupees 700 paid
of the firm paid by check. Very easy. Electric bill account debit, telephone bill account debit to bank. Electric bill account debit 1800, telephone bill account debit 700, to bank 2500. 28. Electric expense account debit 1800, telephone expense account debit 700, to bank 2500. 29. Bank credited 200 for interest and debited 100 for bank charges. बैंक क्रेडिट किया और बैंक डेबिट किया, तो बैंक क्रेडिट किया और बैंक डेबिट किया. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन ऑफ द बैंक क्रेडिट एंड बैंक डेबिटेड. of 29. Interest, bank account debit to interest and bank charges account debit to bank. This is bank charges, so our expense, bank balance was decreased, bank has taken, so bank charges our expense, so bank charges account debit to bank. This is bank has given interest to us, so bank balance is increasing, the bank account debit to bank interest. Bank interest is your income, bank charges is your expense. So one is bank account debit to bank interest, as it is a bank interest is income, and it is credited, bank is credited. पहले देखो 29 में बैंक हैज क्रेडिटेड, तो हमको डेबिट करना है, और बैंक हैज डेबिटेड मतलब हमको क्रेडिट करना है. ये भी ध्यान रख सकता है बराबर, और ऐसा भी ध्यान रख सकता है बैंक चार्ज एक्सपेंस, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट. 29. Goods of rupees 530, 500 stolen and 200 was rand in rain, और रैंड इन रेन मतलब ज़्यादा बारिश में 200 रुपये का गुड्स डिस्टर्ड हो गया और 500 रुपये का गुड्स चोरी हो गया. तो बस इजी है, दैट इज 200 रुपये 500 रुपये. लॉस ड्यू टू थेप अकाउंट डेबिट टू परचेस एंड लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट टू परचेस. लॉस ड्यू टू थेप अकाउंट डेबिट गुड्स चोरी हो गया टू परचेस, लॉस ड्यू टू रेन में बिगड़ गया टू परचेस. and obtain change of rupees 1000 but currency note of rupees 100 was duplicate, then nothing can be realized. So 1000 रुपये का चेंज लेने के लिए टाइम 100 रुपये का डुप्लीकेट निकाला, बाद में वापस करने के लिए गया तो पैसा आपको नहीं मिला, तो आपको लॉस हो गया 100 रुपया. दिस इज योर लॉस, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट. ऑब्टेन चेंज for rupees 1000 but currency note of rupees 100 was duplicate, nothing can be realized. 100 was loss over. Sundry loss account debit to cash. How much? 100. This is कभी कभी ऐसा होता है ना, चेंज करने के लिए गया तो डुप्लीकेट नोट निकला, डुप्लीकेट नोट दे हैव नॉट गिवन बैक, सो योर सन्डे लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियरली स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू from this fourth chapter. No, सबसे illustration number 12 is most important. This is most important illustration. आप illustration number 12 को 3 बार पढ़ के देखो, आंसर तुम्हारा बुक में है, मैं एक्सप्लेन किया. 31 transactions are there. All 31 transactions are very important and interesting and most important. कैलकुलेशंस अमाउंट कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इसका पीछे द पेज नंबर 88, 89 एंड पेज नंबर 90, ये तीनों में सब ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया, अमाउंट हाउ टू कैलकुलेट इट. यू गो थ्रू एटलीस्ट ट्वाइस दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम exercise, then we will come back to the GST. Okay, hope you are understanding. Once again I want to tell you, even though if you do not understand in any place, you can tell me at any time. Okay, bye, all the best.